Hello friends, welcome back to my channel. This is Mr. Chutke helping you today with chemistry in everyday life, a new chapter of organic chemistry. Now, in this chapter, we are going to study all about the substances which we require in our daily life, like antioxidants, soap, detergents. Apart from this, we are also going to study about medicines. Yes, you heard it right. Medicines, they are also known as drugs. Now, the moment I say drugs, you may think about something that you party with, but we are not talking about those drugs. Okay, those drugs are also actually medicines. They also are having a use, but people have abused them. So it's a very interesting topic, and we're going to dive in deep into this chapter. So now, how do you define something called as a drug? So drug is any substance which can be administered or can be taken into your body for the treatment, diagnosis, mitigation, and or prevention of a disease. Okay, let me just repeat it once more to you. What is a drug? A drug is any chemical substance which you can administer, okay, or apply on your body for the treatment, prevention, mitigation, or diagnosis of a disease. Now, whatever is used for treatment and treatment of a disease is obviously medicine, obviously drug. But whatever is used for mitigation or whatever is used for prevention also of a disease, that is also coming under drug. Say for example, vaccine. Now, recently when I say vaccine, you will think about the COVID vaccine, but not only the COVID vaccine, all other vaccines are helping you prevent the disease before it occurs. Now, say for example, you take a polio vaccine. When do you take a polio vaccine? You will take a polio vaccine only. When you were a kid, do boon zindagi ke, that polio vaccine drive. Before polio, the polio virus is called as the poliomyelitis virus. Before it interacts in you with you, whether it come before it comes into your body, you take polio vaccine so that when the actual poliomyelitis virus comes, you are safe. You can literally prevent yourself from the disease. Now, what is a vaccine? Vaccine is basically a semi-dead or completely dead virus or bacteria which is causing that same disease. ओके, लाइक पोलियोमाइलिटिस का ही वायरस. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो इफ दिस इज आई एम नॉट ड्राइंग अ बेंजीन रिंग बाय द वे, या आई एम ड्राइंग अ वायरस. ओके, सो यस, ये वायरस का डीएनए वगैरह. ओके, तो नाउ दिस इज अ वायरल वायरस. ओके, तो अगर इसकी वजह से आपको डिजीज हो रहा है, आपको पता है कि इसकी वजह से डिजीज हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे फॉर मेकिंग अ वैक्सीन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज वील कैच होल्ड ऑफ द वायरस, विल रिमूव द विरुलेंट फैक्टर, द डीएनए और विरुलेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज. और ये जो खाली कैप्सूल है, राइट, विल किल इट कंप्लीटली और विल कीप इट सेमी किल्ड. ओके, एंड देन ये कैप्सूल को इंसर्ट करेंगे एज वैक्सीन, प्रॉपर फॉर्मुलेट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, डाउन प्रोसेसिंग करेंगे और फिर एक शीशी में भर के आपको दे देंगे एज अ वैक्सीन. तो ये वैक्सीन क्या करेगा आपकी बॉडी में जाके? ये वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को अलर्ट कर देगा, पहले से ही बता देगा कि ऐसे टाइप का वायरस आता है. अगर ऐसा टाइप का वायरस आया तो आप आपके एंटीबॉडीज रेडी रखना. अगर वायरस आपकी बॉडी में आता है तो आप उसको, आपके एंटीबॉडीज रेडी रखो ताकि वो उसको मार सके. ठीक है, तो इस तरीके से इम्यूनिटी हमारी काम करती है एंड इस तरीके से वैक्सीन काम करती है. तो वैक्सीन इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन of a disease. ठीक है, it is used for what? Prevention of a disease. तो मैंने क्या बताया आपको कि any substance that can be used for प्रिवेंशन, डायग्नोसिस मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी किडनी ठीक से फंक्शन कर नहीं, आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रही है ठीक से, तो आप ये आपकी किडनी कैसे चेक करोगे? अंदर जाके चेक करना है, ऑपरेशन करके चेक करेंगे. अरे भाई, ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, सिर्फ चेक करना है, डायग्नोस करना है कि सही से काम कर रही है कि नहीं. तो मैनेटॉल नाम का एक लिक्विड है. मैनेटॉल नाम का लिक्विड हम लोग इंजेक्ट कर देंगे थ्रू द थाई, और इंजेक्ट करने के बाद में 4-5 घंटे आपको उधर ही बिठाएंगे और बहुत सारा पानी देंगे पीने के लिए. और हर बार जब आप यूरिन करोगे, यार मिक्सचुरेशन के लिए जाओगे, यूरिनेशन के लिए जाओगे, छोटा सा सैंपल लेके चेक करेंगे कितना मैनेटॉल, कितना परसेंटेज मैनेटॉल बाहर आ रहा है. अगर जितना इंजेक्ट किया था ऑलमोस्ट उतना मैनेटॉल अगर बाहर आ गया, इसका मतलब आपकी किडनी ठीक से काम कर रही. और अगर उतना मैनेटॉल बाहर नहीं आया, दैट मीन्स आपकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी किडनी मैल फंक्शन कर रही है. तो ये किसकी मदद से डायग्नोसिस किया हम लोग ने? मैनेटॉल लिक्विड से. तो मैनेटॉल can be called as a drug. So it can be, because it is used for diagnosis or anything that is used for prevention.
देन व्हाट डिड आई से, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, वो तो आपको बता दिया, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट, अ ड्रग। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप जो अभी मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर वो पार्टी में ले रहे, फिर ऐसा ये हो गया, दिमाग में चढ़ गया, सातवें आसमान पे पहुंच गया, ऑल दैट, तो वो बेसिकली नार्कोटिक सब्सटेंसेस है। वो नार्कोटिक सब्सटेंसेस जैसे कि मॉर्फिन है, हेरोइन है, कोडेन है, राइट, दीज आर द ओपियम डेरिवेटिव्स, राइट, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन, राइट, देन ये तो मैंने जैसे बताया आपको, ओपियम के डेरिवेटिव्स, ओपियम पॉपी नाम का एक प्लांट है, पापावर सोमनिफरम उसका बायोलॉजिकल नेम। दूसरा एक प्लांट है, उसका बायोलॉजिकल नेम कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा जैसे भांग, चरस, गांजा, हफू, अफीम, राइट, हशिश, ये सारी चीजें कैनाबिस सटाइवा के डेरिवेटिव्स है। तो ये प्लांट्स जो है ये नेचर में है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी ड्रग की कैटेगरी में आते हैं, मतलब दीज आर ऑल्सो हैविंग सर्टन यूजेस, इनका भी कुछ ना कुछ यूज है, राइट। इसको यूज करने की जगह पे प्रॉब्लम कब होता है, जब आप यूज करने की जगह पे इसको अब्यूज करते हो, या इंस्टेड ऑफ यूजिंग यू आर अब्यूजिंग इट। मतलब मीनिंग समझाता हूं आपको, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको एक बुलेट लग जाती, ठीक है, या आर्मी में कोई है, मिलिट्री में है, उनको ये परमिटेड है ये यूज करना, आर्मी रखती है अपने पास में, क्योंकि अगर बुलेट लग गई, ठीक है, इधर बुलेट लग गई आपके और खून निकल रहा है, उसमें ये ट्रॉमेटिक पेन है, इंटेंस पेन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उस पर्सन को बोलोगे नहीं भाई तू पेन किलर खा ले, क्रोसिन वोसिन ले लेना, डिस्प्रिन वगैरह, ठीक है, एक ने एक दवाई से बहुत ज्यादा दर्द लगा है, खून भी ज्यादा निकल रहा है, एक काम करो, डिस्प्रिन या पैरासीटामोल या फिर आइब्यूप्रोफेन, कॉम्बिफ्लैम, ऐसा दवाई ले लो, 4-5 टैबलेट ले लेना, ताकि दर्द बहुत हो रहा है तो उसका दर्द कम होगा क्या? बिल्कुल कम नहीं होगा। ये जो आपका आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल या फिर डिस्प्रिन जैसी जो दवाइयां है, ये ओटीसी, ओवर द काउंटर नॉन नार्कोटिक पेन किलर्स है। नॉन नार्कोटिक पेन किलर्स ये मामूली पेन के लिए, जैसा कि सर दर्द कर रहा है, बॉडी एक कर रही है, ठीक है, तो मामूली पेन के लिए ये है। बट ट्रॉमेटिक पेन जब आता है तब ऐसा 10 गोलियां भी खाओगे डिस्प्रिन के तो इनफैक्ट आपकी सिचुएशन और वर्स होगी। डिस्प्रिन ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, पेन किलर करेगा, बट वो पेन क्या किल करेगा, जो ये ट्रॉमेटिक पेन है, इंटेंस पेन है, इस पेन को रोक नहीं पाएगा। तो नेचर ने ये जो दवाइयाँ, ये जो ड्रग्स, ये जो मेडिसिन, ये जो प्लांट्स बनाए हैं, ठीक है, और हमको इनके बारे में पता चला है, ठीक है, ये हमको बहुत पहले से पता है, ऐसा नहीं कि रिसेंटली पता चला है, ये बहुत पहले से हमको इनके बारे में पता है। तो ये यूज होता है ट्रॉमेटिक, इसके एक्सीडेंट हो गया या किसी को बुलेट लग गई है, तो अब उस केस में इंटेंस पेन में, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में इनका यूज पड़ता है। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन और जैसे कैनबिस सटाइवा के जो मेडिसिन मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एनाल्जिया, जैसे कि एनाल्जेसिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्जिया, अल्जिया मीनिंग पेन, और एनाल्जिया मतलब टू रिड्यूस द पेन। तो ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है ये सब, ठीक है। तो इनका यूज है, प्रॉपर यूज है कि अगर किसी को ट्रॉमेटिक पेन हो रहा है तो उनको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग इसका कर रहे हैं अब्यूज। ओके, अब्यूज का मतलब क्या हुआ? जिसको चींटी काटती इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा बंदा जाके ले रहा है मॉर्फिन, हीरोइन, कोडेन, ड्रग पेडलर्स है, ठीक है, ये लोग उनको जो जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय पदार्थ का सेवन, या ठीक है, जिसको इलिसिट ट्रैफिकिंग बोलते हैं, राइट। तो इलिसिट ट्रैफिकिंग की वजह से ये पहुंच जाता है हमारे कुछ ऐसे महान आत्माओं के पास, जो लोग बोलते हैं माई लाइफ माई रूल्स, राइट, जिनको खुद की अकल नहीं है, बड़ों की बात मानते नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि लाइफ में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, ठीक है, फिर ये ट्राई करने के बाद में वो और कुछ ट्राई करने के लायक बचते नहीं है। क्यों? तो क्यों इनको बोला जाता है? इनको पहले माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है इनका, और बोलते हैं कि तुम सातवें आसमान पे जाओगे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। तो इसका यूज आपको समझ में आया, इसका अब्यूज इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके कुछ साइकोटिक इफेक्ट्स भी है, राइट। इसके कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम एनाल्जेसिक्स, इसके कुछ अलग इफेक्ट्स भी है। वो इफेक्ट क्या है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये दोनों को दोनों का डिसजंक्शन कर देता है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन जनरली, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉफी पीते हो, थोड़ा सा आपको फ्रेश लगता है, बिकॉज इट इज अ सीएनएस एक्साइटेटरी ड्रग। कौन? कॉफी, कैफीन। कैफीन भी ड्रग है, यस। रेडबुल में 40 कप कॉफी जितना कैफीन है, दैट इज ऑल्सो अ ड्रग,
ओके तो इट इज एक्साइटिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइट होता है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हमारा साथ में चल रहे दोनों। ठीक है, आपका ब्रेन फास्ट है, आपका हार्ट भी फास्ट चल रहा है, मतलब आप दौड़ रहे हो, हार्ट पंप फास्ट हो रहा है और आपका ब्रेन भी फास्ट चल रहा है। ठीक है, आप सोते सोते भाग नहीं सकते, या जब आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन भी काम डाउन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिप्रेस्ड है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अपना एक स्लो रेट पे चल रहा है, एवरेज से थोड़ा स्लो रेट पे चल रहा है। लेकिन जब आप भाग रहे हो तो दोनों फास्ट, मतलब इन शॉर्ट हमारी बॉडी में जब भी ये फास्ट होता है तो दोनों फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं तो दोनों स्लो होते हैं। लेकिन ये जो इसका जो कंजंक्शन है उसको तोड़ देता है कौन? मॉर्फिन। मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो आप साथ में चल रहा है इनको डिस्ट्रीम, मतलब माइंड फास्ट हो जाएगा, वो बॉडी स्लो हो जाएगी, हार्ट स्लो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी नहीं आया और उसको ही आप समझ बैठे कि इसी को सुख कहते हैं। राइट, से फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोन खरीदने जाते हो ना, जब भी, तो फोन खरीदने की आप में डिजायर है, आपको ऐसा लगता है कि मैं फोन खरीदूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, और दुकानदार को लगता है कि मैं 10 फोन बेचूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। राइट, लेकिन आपको यह बता दूं कि जब ये फोन खरीद लिया जाता है आपको सुख का आभास होता है। राइट, और दुकानदार भी वहां पे सुखी हो रहा है कि यार मैंने 10 फोन बेचने का मेरा टारगेट था, मेरा वो कंप्लीट हो गया, और आपका टारगेट था, आपका गोल था, आपकी इच्छा थी, आपकी डिजायर थी कि आपको फोन खरीदना, तो वो कंप्लीट हो गई। राइट, तो यहां पर अगर फोन में सुख होता तो दुकानदार वहां पे रोते हुए मिलना चाहिए था। अगर आप खुश हो रहे हो, दुकानदार तो अरे बिक गया रे, मेरा फोन तो बिक गया, हाय रे हाय, ऐसा बोलना चाहिए था। क्योंकि फोन, सुख आपका फोन में नहीं है, हैप्पीनेस आपकी फोन में नहीं है। हैप्पीनेस आपकी जो, जैसे आप डिजायर क्रिएट करते हो और डिजायर जब रिलीव होती है तब आपको सुख का एहसास, आभास होता है। राइट, तो ऐसे ही दिमाग में आपके भर दिया कि ऐसा होगा, तेरा ब्रेन फास्ट हो जाएगा, तू ऐसा स्लो हो जाएगा, ऐसा सातवें आसमान पे जाएगा एंड ऑल दैट। वैसे तो जमीन पे रहता है, कुछ होता नहीं वैसा। राइट, उसको ब्रेन वॉश कर दिया और फिर ये दे दिया, फर्स्ट डोज फ्री में दिया जाता है, तो ये सीएनएस सीवेस का जो कंजंक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेन एकदम फास्ट हो गया और बॉडी एकदम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एकदम डिप्रेस हो गया, डाइजेशन एकदम स्लो हो गया, पूरा बॉडी स्लो हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि वाह, ऐसा सिचुएशन तो मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं। और इसका, ये मॉर्फिन, हेरोइन, कोडेन, ये जो ड्रग्स है ये सिर्फ अडिक्टिव नहीं है, अडिक्टिव के नेक्स्ट लेवल पे ये डिपेंडेंस कॉज करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि किसी को चाय पीने की आदत है, एडिक्शन है चाय पीने का, तो एक दिन अगर उसको चाय नहीं मिली तो हो सकता है कि थोड़ा सिर दर्द करे, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाए कि आपको समझ में नहीं आता क्या दूध ला के रखना चाहिए, मेरे को चाय नहीं मिली, ऐसा बोल सकता है। दिस इज एडिक्शन। लेकिन डिपेंडेंस किसी का खून नहीं करेगा ना एडिक्शन में, लेकिन डिपेंडेंस में ये एडिक्शन उस लेवल पे पहुंच जाता है कि खून भी करने को तैयार है, बैंक लूटने को तैयार है, किसी को अगर जान लेनी किसी की, उसके लिए भी तैयार है, सब करने को तैयार है। इसी के लिए ये क्यों? क्योंकि इसका जब विड्रॉल, जब इसका डोज कम होने लगता है बॉडी में, तो विड्रॉल सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं और उस विड्रॉल सिम्टम में वो बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको बोलो नेक्स्ट डोज दे, चोरी करके ला, पैसे दे, देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रग पेडलर्स काम करते हैं। पहला डोज फ्री में देते, दूसरा डोज पता है ये ढूंढते हुए अपने पास आएगा, तब उसको क्रिमिनल वर्ल्ड में क्रिमिनल काम उससे करवाएंगे। तो इसके लिए इन ड्रग्स की सजा ऐसी है कि अगर यूएई में अगर आप इन ड्रग्स के साथ में आप पकड़े गए, लेना दूर की बात है, ये ड्रग्स आपके साथ में मिले तो यू कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ। इतना स्ट्रिक्ट लॉ है। और इंडिया में देर इज जेल ऑफ 7 years, ओके, एंड यू कैन बी फाइंड अप टू ₹2 lakhs। तो ये इसका इतना स्ट्रिक्ट क्यों है इसके ये लॉस? क्योंकि दीज आर द ड्रग्स विच आर अलाउिंग यू टू, और विच आर कॉजिंग पीपल टू एंटर द व्हाट यू कॉल्ड, सो कॉल्ड क्रिमिनल वर्ल्ड। ओके, तो इसका यूज तो अच्छा है, अच्छा ही बनाया था नेचर ने ट्रॉमेटिक पेन को कम करने के लिए, बट लोग उसका अब्यूज कर रहे हैं। तो अभी अब्यूज कर करके मौत आ जाती है, मरने की लायक हो जाते हैं, बॉडी वेट कम हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर ये ड्रग्स कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पेन आप कंज्यूम कर रहे हो साइकोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स हैप्पीनेस, यूफोरिया, यूफोरेटिक इफेक्ट्स के लिए आप कंज्यूम कर रहे हो, तो बॉडी तो जवाब देगी। राइट, और अल्टीमेटली आप मरने के कगार पे आ जाओगे, खुद को, खुद का मन पे कंट्रोल छूट जाएगा कि पता है कि मरने वाला हो लेकिन फिर भी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में रिहैब सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में एंटाब्यूज दिया जाता है, जिसमें ये ड्रग जैसा ही कुछ इफेक्ट होता है, बट मतलब ऐसा है कि भाई टेरिस पे गिरने से अच्छा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से गिर, है ना। तो दैट इज मेथाडोन, ये मॉर्फिन का एंटाब्यूज है। ठीक है, इसकी लत छुड़ाने के लिए फिर मेथाडोन दे के
उसमें भी थोड़ा मॉर्फिन जैसा इफेक्ट होता है बट कम इफेक्ट होता है, तो थोड़ा मेथाडोन का डोज फिर कम 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 करते करते पूरा छुड़ा देते हैं, राइट। फिर मेथाडोन इज द एंटाब्यूज फॉर मॉर्फिन। देन लोबेलिया इज द एंटाब्यूज फॉर स्मोकिंग, निकोटीन का एंटाब्यूज है ये लोबेलिया। और डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम ये एंटाब्यूज है अल्कोहल का, जो अल्कोहलिक है। अब ये सब सुन के तुम बोलोगे सर मेरे घर पे ना मतलब एक वो आदमी बहुत शराब पीता है, ठीक है, चाचा है पापा है बहुत शराब पीते हैं, सर इसको है ना डाइसल्फिराम थोड़ा सा खाने में मिक्स करके दे देता हूँ। ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डाइसल्फिराम के बाद में क्या हो जाता है कि अल्कोहल, जब कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो इथेनॉल कंज्यूम करता है, क्योंकि मीथेनॉल अगर कंज्यूम करेगा, एम वाला मीथेनॉल अगर कंज्यूम करेगा उधर ही मरेगा। कम डोज में तो अंधा हो जाएगा, हायर डोज में मौत हो जाएगी, वो तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन इथेनॉल जो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या मतलब जनरल हमारा पुणे लोनावला मुंबई वाला रिएक्शन, इथेनॉल विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म के साथ में लीवर का काम है इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना, और इथेनोइक एसिड इज यूज देन इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भेज दिया जाता है इथेनोइक एसिड को। तो डाइसल्फिराम क्या कर देता है कि इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है इस प्रोसेस को, मतलब इथेनॉल कन्वर्ट होगा इथेनॉल में बट इथेनॉल विल नॉट कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड। अब जब इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है अल्डिहाइड बहुत ज्यादा बन जाता है, अल्डिहाइड इथेनॉल एसिटिल्डिहाइड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, और ये अल्डिहाइड है ना उल्टी जैसी फीलिंग लेकर आता है, ठीक है, उल्टी करवाता है, ये बहुत ज्यादा उल्टी हो जाएगी, इतनी कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डॉक्टर पहले इसको अगर किसी को डाइसल्फिराम देना है तो पहले आईसीयू में एडमिट करता है और फिर उस पे उसको डाइसल्फिराम देता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइसल्फिराम इथेनॉल तक ऑक्सीडाइज करवाता है, उसके आगे ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, और इथेनॉल कभी भी हमारी बॉडी में अल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है तो हमको उल्टी जैसी फीलिंग आती है। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ डाइसल्फिराम। नेक्स्ट टाइम इतनी उल्टी करता है बंदा, उसको शराब से नफरत हो जाती है, he'll never consume disulfiram, never consume alcohol। और लोबेलिया एक डेटरेंट है, स्मोकिंग का डेटरेंट है, राइट। ये निकोटीन को जब स्मोक करते तो बहुत कड़वा फीलिंग देता है लोबेलिया लेने के बाद में, प्लांट है ये, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू क्विट स्मोकिंग। ओके, तो ये यूज अब्यूज एंड अब्यूज आपको कुछ चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग फिर से हमारे चैप्टर की तरफ जाते हैं, रेडी। हम लोग को मतलब आई फील दैट इट इज माय मॉरल ड्यूटी टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू, ओके। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, राइट। ये सारी चीजें भी आपको बताना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, ओके। सो ये जनरल बता रहे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फूड आ गया, क्लोथिंग आ गया, शेल्टर आ गया, ये सारी चीजें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो रिक्वायर मेडिसिन, एंड मेडिसिन का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, राइट। कि मेडिसिन आर हैविंग द 4 क्वाड्रेंट्स, चारों मैंने आपको बता दिए, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन और क्योर ऑफ अ डिजीज। इन सब में जो कुछ भी यूज होता है वो सारा मेडिसिन कंसिडर करेंगे या उसको ड्रग कंसिडर करेंगे। देन या ड्रग का मैंने आपको डेफिनेशन पूरा बता दिया है, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ड्रग, मतलब ये जो मेडिसिन है या ड्रग है वो कैसा होना चाहिए, एक आइडियल मेडिसिन कैसा होना चाहिए। देखो अगर कोई भी ड्रग है ना, अगर उसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा ही, ओके। अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी उसका हो सकता है, ठीक है। सो आइडियल ड्रग शुड नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट शुड बी हार्मलेस टू होस्ट बट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए बट होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल स्टमक पेन के लिए अगर कोई दवाई ले रहे हो तो स्टमक पेन तो रुक गया लेकिन लूज मोशन शुरू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स का जो कोई भी इफेक्ट दिखा रहा है वो सिंगल इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं बट जनरली साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज करने की कोशिश चलती है फार्मा की, फार्मा ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स, लेकिन साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स ये जनरली होते ही है, ओके। सो लोकलाइज टू अफेक्टेड साइट, मतलब जिस एरिया में हम चाहते कि ड्रग काम करे, से फॉर एग्जांपल कि किसी को अगर लंग कैंसर हो गया है तो लंग्स में जो कैंसरस सेल्स है उनको टारगेट करके मारने वाला ड्रग चाहिए, ना कि वो हमारी सारे बॉडी की सेल्स मारते जाए। जनरली ऐसे ही होता है कि अभी समझो मेथोट्रेक्सेट ले लिया, मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, मेथोट्रेक्सेट ये हमारी बॉडी की सारी सेल्स को मारेगा, जो सेल्स उसको मिलेंगे सबको मारेगा, ऐसा नहीं कि कैंसरस सेल्स को पकड़ के मारेगा, ओके। सो दैट रिजल्ट्स इन एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स इसमें क्या हो जाता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में लिखा है अपने लोगों ने, टकले हो जाते लोग। टकले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एलोपेशिया होता है, एलोपेशिया इज लॉस ऑफ हेयर, ओके। एनोरेक्सिया होता है, एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट,
Okay, alopecia, anorexia. Okay, so here we are having द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. अभी ड्रग्स का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया और बहुत सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस भी कर ली, इंट्रोडक्टरी चीजें. अब हम लोग चैप्टर की तरफ वी आर ट्राइंग टू मूव इन डेप्थ. तो अब ड्रग्स कितने हैं? ठीक है, एक दो ड्रग नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों मेडिसिन हैं. ठीक है, क्योंकि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर क्योरिंग, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग. तो ऐसे आपको चॉक पाउडर भी आपके लिए ड्रग हो सकता है. अब चॉक होता है ना, चॉक इज अ ड्रग. चौक में है कैल्शियम कार्बोनेट. अब जो बंदे को अगर कैल्शियम कम है, कैल्शियम सैंडोज या कोई भी कैल्शियम का टैबलेट लेता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है भाई. सो दैट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि चॉक कैन ऑल्सो बी अ ड्रग, चॉक कैन ऑल्सो बी अ मेडिसिन. तो हाँ, दिस कैन ऑल्सो बी अ मेडिसिन. तो इतने जो लाखों मेडिसिन है उनको अगर स्टडी करना है तो एक तरीके का क्लासिफिकेशन होना चाहिए. एक क्लासिफाई करने के लिए एक प्रॉपर वे, एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए. तो उसके लिए वी हैव क्लासिफाइड मेडिसिन और ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर. मतलब जिसमें भी बेंजीन रिंग है या पेनिसिलिन वाला रिंग है, जो सल्फोनामाइड रिंग है. ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन का मैं आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है. आसान तरीका एक बता देता हूँ. ठीक है, तो अगर पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले एक घर बनाओ. एक घर बनाऊंगा मैं तेरे घर के सामने, राइट, घर बनाओ. फिर उस घर में घर के ऊपर एक स्पैरो बैठा है, एस. ओके, और यहाँ पर एक एंटीना है और घर के बाजू में एक गराज है. जैसे यूएस में होते जनरली घर, ऐसे घर यहाँ पे, गराज यहाँ पे, राइट. तो ये गराज का गेट है. यहाँ पे एक डॉग को बांध के रखा है. यहाँ पे गाय बांध के रखी हुई है, राइट. यहाँ पे कुछ ऐसा समझ लो कि कुछ कपड़े सुखाने के लिए हम लोगों ने डाल दिए है, राइट. सॉरी, आर उस तरफ होना चाहिए, सॉरी. ओके, सो ये है 6 अमाइनो पेनिसिलिन. एंटीना मतलब CH3 है. 6 अमाइनो, APA कहते हैं, 6 अमाइनो पेनिसिलियानिक एसिड. ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का. अब जब पेनिसिलिन का भी बहुत बड़ी स्टोरी, जब ये आएगा पेनिसिलिन में आपको तभी समझाऊंगा. ठीक है, कि कैसे इज डिस्कवर्ड बाय सेरेंडिपिटी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है पेनिसिलिन का. तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. लेकिन ये पेनिसिलिन वाज द लैंडमार्क ऑफ एंटीबायोटिक्स. फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना. तो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस आ गया तो हम लोग ने इसी के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाए. जैसे कि पेनिसिलिन के बाद में अमोक्सिसिलिन, देन एम्पिसिलिन, देन टेट्रासाइक्लिन. ओके, देन अभी जो फिलहाल मार्केट में चल रहे सिफालोस्पोरिन. सिफालोस्पोरिन में जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, फिलहाल जनरेशन 3 सेफालोस्पोरिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि पेनिसिलिन से ही ओरिजिनेट हुआ है, वो अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है. देन क्लॉक्सासिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये सारे पेनिसिलिन के ही डेरिवेटिव्स है. ओके, सो कमिंग बैक, तो जिसमें एक कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन रिंग है, वो कॉमन रिंग समझो बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर्स को अलग से ले लो. जिसमें COH है, उसको उन सारे ड्रग्स को एक लिस्ट बना देंगे. तो वैसे क्लासिफाई, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. देन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स, प्रोटीन. जैसे ये साइंटिस्ट के लिए यूज किए जाते हैं कि हमारी बॉडी में कई कई जगह पे कुछ प्रोटीन है, कुछ एंजाइम्स है, तो उसको टारगेट करना है. जैसे कि मैंने बोला लंग कैंसर हुआ तो लंग्स में जो कैंसरस सेल्स है उनके ऊपर टारगेट करना है. जैसे ब्रेन में आपको अगर कुछ गड़बड़ होगी, डोपामाइन का लेवल कम हो गया है, तो उधर ब्रेन में वो सेल्स जाने चाहिए, वो ड्रग जाना चाहिए, मेडिसिन जाना चाहिए, वहां पे टारगेटेडली हील करना चाहिए. तो दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स. देन उस सब वो ड्रग्स का लिस्ट जितने भी मॉलिक्यूलर टारगेट्स पे बेस्ड है वो सारे इस लिस्ट, इस बैनर के अंदर, इस हेडिंग के अंडर आ जाएंगे. ओके, देन बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब एक्शन ऑफ ड्रग, हर एक ड्रग का अलग अलग एक्शन है. जैसे कुछ ड्रग्स एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी टेम्परेचर कम कर देते. अब कुछ ऐसे ड्रग्स है जो एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर कम करते हैं. आपके पेरेंट्स को जरूरत है उस चीज की. एंटी हाइपरटेंसिव, तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उनको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी. एंटी हाइपरटेंसिव चाहिए. देन एंटी हाइपोग्लाइसीमिक, ओके, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करने वाले, राइट. सो ऐसे अलग अलग जो एक्शन है उसके बेसिस पे. देन बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, ये दोनों थोड़ा सिमिलर आ जाता है क्योंकि दो तरीके के एक्शंस होते हैं. एक ड्रग आपकी बॉडी पे क्या एक्शन करता है और आपकी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या एक्शन करती है. मतलब
क्या बोल रहे हो, उससे समझ में नहीं आया। से फॉर एग्जांपल आप एक क्रोसिन की टैबलेट खाते हो, क्रोसिन में नथिंग बट देयर इज पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल आप खाते हो तो पैरासिटामोल आपकी बॉडी में जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर उसको कम कर देता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल ऑन योर बॉडी, राइट। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर बॉडी ऑन पैरासिटामोल? हाँ, आपकी बॉडी भी पैरासिटामोल पे कुछ करती है, क्या करती है, ADME करती है। पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, ए एडमिनिस्ट्रेशन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी बॉडी में सब जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन एम मेटाबोलाइज करती है उसको, लीवर हमारा उसको मेटाबोलाइज करता है, और मेटाबोलाइज करने के बाद में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब उस ड्रग को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सो ADME, हमारी बॉडी उसके साथ में ADME कर रही, वो आपकी बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब जो उसका इफेक्ट है दैट इज डिक्रीजिंग द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। तो चलो अभी आपको जो कुछ भी सिखाया है उसमें से ये समझ में अगर आया है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, चलो बताओ, या ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए, राइट। देन नाउ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिज्म, एक बार आप ये वीडियो थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर लो एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे।